Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are you all Good doing? afternoon. Nice, ma'am. Start करें class? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, okay. So yesterday we started with the international business, chapter number 10, the second last chapter of our syllabus. Yesterday we started talking about what, how much did I do the reasons with you and problems of international business? What all did we do in the class? Yashika, Yes, ma'am. what did we do in the class yesterday? Ma'am, actually, I wasn't present in the You were classes of yours present. because Uh, uh, I had to move out of station. okay. Now, yesterday we started talking about the concept of. I gave an overview of the chapter, and we started talking about the concept of international business. International business can be of three types. International trade. When we say international trade, it can be of three types, or it can be done in three ways: export, import, and entreport. Now, when we were started talking about what is the nature or what is the main feature of international business, then we said where two countries are involved. I'm not saying, I'm not using the word states. I'm using the word countries. When two countries are involved while doing trade, that will be considered as international business. The payment where it is done in foreign currency, that will be considered as international business. We did the differentiation between, yes, the internal trade and external trade, although this is the एक बार हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, चैप्टर नंबर 9 में भी किया था. Now we are doing in chapter number 10 again. If we see what is the difference between internal trade and external trade, we have done the meaning. Now the meaning is internal trade when it refers to buying and selling of goods within the geographical limits of one's own country, और अपनी country से बाहर हो गया तो external trade हो गया. वहाँ एक country involved है, वहाँ दो countries involved है. Then when we talk, यहाँ पे local currency और home currency is used, or the country's currency is used. यहाँ बाहर की currency, foreign currency में the payments are either made or received. या हम अगर import कर रहे हैं तो हम payment दे रहे हैं तब भी अपनी currency में, और वहाँ की we are giving in foreign currency. Procedure involved. Now here there are less procedures involved. Here are more procedures involved. The rules and regulations which have to be followed in external trade, they are more lengthy. हर country के साथ जब आप trade करते हो, हर country के साथ हमारे rules and regulations अलग हैं. Internal trade में जो rules and regulations हमारी एक particular या center बना रही है या state बना रही है, that will be applicable on the entire state. If we take an example of state of Gujarat, Uttar Pradesh, big states, और Goa, छोटी states का भी एग्जाम्पल, तो पूरी स्टेट में the same rules which are applicable by the state, they will be applicable. But यहाँ we'll be dealing with rules and regulations which have been drafted by another country. Local transportation हम यूज कर रहे हैं जो हमारे कंट्री में मिलती है, हमें रोड्स हैं, रेलवेज हैं. We might use ship, but ज्यादातर नहीं यूज की जाती लोकल में. But यहाँ what here we'll be using more of here we are using more of air and
water. When we are using air and water, so the risk involved is also gets higher. Cost involved or the cost of doing this business will also be higher. And here we are always affected or by the fluctuations in foreign currency. या उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, पॉलिसीज नहीं बनती हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, उससे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एक्सटर्नल ट्रेड पे, एंड ऑन द इंटरनल ट्रेड वी हैव नो इम्पैक्ट. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जब इंटरनल ट्रेड बेटर है, हमने देखा कि रिस्क नहीं है, हैवी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, इतना पॉलिटिकल गवर्नमेंट से हमें इतना असर नहीं पड़ रहा है इंटरनल ट्रेड. So what is the reason for doing international business? Let's do only internal trade and let's be satisfied, everyone. But it says what are the reasons for doing international business. पहले पूरे हमारे कंट्री में, पूरे हमारे प्लैनेट में, वर्ल्ड में the resources are not adequately or appropriately distributed. Some countries are rich in some resources, some countries are rich in some resources. Some continents are different. कोई पानी के पास है, कोई बिना उसके है. So there are certain advantages of each and every planet or each and every country, each and every continent. Resources are not evenly distributed. कहीं कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, कहीं कोई चीज़ महंगी मिल रही है. अगर हम अफ्रीका की एग्जांपल लें तो अफ्रीका में, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in case we take an example, we are here, the rules and regulations और government की जो policies हैं इतनी strict नहीं है as compared to US. The labor is cheap. The raw material is also we get at a much lesser rate. क्योंकि डेवलपिंग नेशंस हैं, अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रही. दिस इज द रीजन कि चाइना यहाँ पूरा अफ्रीका में उसका बस चल रहा है, तो वो इट इज मेकिंग अ रोड, पूरी इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है अफ्रीका में. रीजन क्या है? लैंड सस्ते में मिल गई, लेबर सस्ते में, एंड देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिसिटी, और वहां सेटअप कर रहा है वहां जहां आसपास रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल, and they are making roads to take the raw materials to their own country. प्रोडक्शन के जितने फैक्टर्स होते हैं, हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, ये सारा कुछ हमें अलग अलग कंट्रीज में बेटर मिलता है, और जहां अच्छा मिलता है वी प्रेफर, द बिजनेसमैन प्रेफर मूविंग देयर. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल हमें कुछ चाहिए. अगर इन केस वी प्रोक्योर दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम विद इन आवर कंट्री, हमें उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है, बट हम इंपोर्ट कर उसको कर रहे हैं, हमें क्वालिटी भी बेटर मिल रही है और रेट भी हमारा. यहाँ क्वालिटी नहीं अच्छी, रेट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा सा 19-20 का ऊपर नीचे है, इट्स ओके, बट देन द क्वालिटी इज मच बेटर. Why did these multinational companies they target setting up their plants in India? जैसे एप्पल, फॉक्सकॉन क्यों आ रहे हैं इंडिया में? रीजन क्या है इतने इंटरनेशनल बिजनेस का? दे आर गेटिंग मच ऑफ प्रिविलेजेस हियर. तो जहां उनको बेटर एडवांटेजेस मिलती हैं in respect of goods, in respect of services, they will prefer moving there. And it's not that in case they want to do international business, there are no problems related with international business. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर we take an example of ourselves, we are moving into another country, the first problem we'll face is the language barrier, the time zone barrier, the culture problem, the fashion problem, the trends, सब अलग अलग है वहां पे. वहां के लॉज को अबाइड करना, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करना, दैट इज ऑल्सो
a big problem. हमारे करेंसी रेट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. पानी से गुड्स भेजनी या लेनी या मंगवानी, दैट इज अ रिस्क इन्वॉल्व. मगर considering the importance of international business, these problems can be overcome. अब तो नए नए एप्स आ गए हैं जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं हमारे लिए. रिस्क को कवर करने के लिए वी हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज. Every company they face problem. Like if we talk yesterday, did I talk about the companies, WhatsApp and all? Like now, if we take an example of WhatsApp, WhatsApp is not there in China. क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की रेगुलेशंस वैसी हैं. Starbucks was not successful in ऑस्ट्रेलिया. रीजन भी यही था कि वहाँ के लोगों को टेस्ट बड्स उनके सेट नहीं हुए स्टारबक्स के साथ. स्टारबक्स हैड टू शट डाउन इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव आउट. एंड द कार कंपनी विच शट डाउन इन इंडिया. रीजन गवर्नमेंट रेगुलेशंस बदली, टैक्स स्ट्रक्चर. इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्सेस दे रन फ्रॉम हियर. तो these are always the problems which are involved in international business. मगर अगर आप सोचो what are the benefits of international business, आप countries governments हमेशा कहती हैं indulge yourself in international business and preferably ज़्यादा prefer करो export करना rather than import, क्योंकि उससे हमारी करेंसी बाहर जा रही, हमें फॉरेन करेंसी लेकर आनी. तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो देयर आर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, देयर आर बेनिफिट्स टू द नेशंस एज वेल एज टू द फर्म्स. अब नेशन को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी. ओके, बिफोर डूइंग दिस, नाउ व्हेन यू आर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, देयर आर वेरियस मोड्स बाय वेयर यू कैन एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. एक तरीका है आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो और इंटरनेशनल बिजनेस मतलब आप अपने कंट्री से बाहर कर रहे हो, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस. सेकंड, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लेते हो या लाइसेंस लेते हो, दैट इज अ मोड ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस. यू आर डूइंग अ जेवी with another company, foreign company, that is again what? Again a mode of entering or a method of entering into international business. Then you are a parent company, that is आप एक नई established company हो, पुरानी established company, आप एक नई company खोलते हो मगर कहीं बाहर खोलते हो, जैसे टाटा मोटर्स की. So wholly owned subsidiaries that will be also, जो उनकी होल्डिंग कंपनीज होती हैं, पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, they will be also a mode of entering into international business, but on the condition they open it outside the country. Then we have another method of entering into international business, that is contract manufacturing. आप कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, that is called a mode of entering into international business. अब इतने अलग अलग तरीके से हम एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में. अब क्वेश्चन अराइज होता है, इज दिस क्लियर? 5 points everyone. We will do this in a little explanation later. Is this clear? Am I audible everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी बात क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इतने तरीके से जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं तो इसके बेनिफिट्स तो होने ही चाहिए. नेशन को अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फर्म को अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं. अब फर्म की अगर हम बात करें, द फर्म हु विल गेट इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, जो फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर देता है या एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व होता है, उसकी मार्केट में गुडविल बनती है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन मिलती है, इन द लोकल मार्केट ऑल्सो, इन द
foreign market also, on the basis of products, on the basis of quality he gives. Let's take an example of Reliance. अब ऐसा तो है नहीं रिलायंस ने शुरू किया और साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, या साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस कर दिया, या साथ ही जेवीज कर लिए. इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा, कोई ऐसा तो नहीं था कि डोमेस्टिक कंपनीज थी पहले एंड दे स्टार्टेड इंडल्जिंग इन देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल बिजनेस. उससे क्या हुआ? इट लेड टू अ बेटर गुड रेपुटेशन इन द कंट्री एज वेल एज ऑन फॉरेन लैंड. तो जब तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी गुडविल सोसाइटी में इंप्रूव होती है, व्हाट विल हैपन? What will happen? It will lead to better prospects, better growth. आप ज्यादा ग्रो करते हो इकोनॉमिकली, प्रॉफिट्स आपके ज्यादा बनते हैं, यू आर एबल टू एक्सपैंड. जब लोग आपके प्रोडक्ट पे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो व्हाट विल हैपन? आपका प्रॉफिट्स ज्यादा, आप एक से दूसरे से ऐसे ही स्लोली दीज स्मॉल कंपनीज दे एक्सपैंडेड वर्ल्ड वाइड. नाउ जब इतनी गुडविल, रेपुटेशन, प्रोडक्शन भी इनको रेज करनी पड़ती है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल द डिमांड. प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी. दैट मीन्स दे कैन फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे तो क्या होगा? दे आर मेकिंग एडिक्वेट और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर मशीनरी. मशीनें लगा के रख दी, इंडिया में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन मशीनों से इतना काम नहीं ले सकते जितनी जरूरत है. मगर once they are into international business, they know the demand is high. हमें fulfill करनी है because we are not exporting to one country, we are exporting to 10 countries. उसके basis पे और people और machinery setup करके taking an industrialization of machinery. मशीनरी सिर्फ मशीन नहीं, even the labor, even the raw material, हर चीज proper utilize करो. They become more colored. क्योंकि जब हम किसी और लैंड के साथ डील कर रहे हैं, हम उनके स्टैंडर्ड्स सीखते हैं कि वो तो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत तरीके से काम करते हैं. Who was giving me an example of there was a king, Indian king. He went to UK during Independence Days. He was rebuked in the showroom. उन्होंने इंडियन कह के और उसको वो कर दिया कि ostracized किया. And he was very upset with this. What did he do next day? He bought 6 cars from that showroom. Yes, ma'am, I know the story of the Rolls-Royce cars. I just forgot कौन सी कार थी वो. And then he utilized those cars कि इंडिया आकर किसके लिए यूज की? म्युनिसिपैलिटी के लिए. म्युनिसिपैलिटी के लिए. And why was it? क्योंकि he was upset the way he was treated in the showroom. And later the company, जब उसकी वैल्यूएशन कम होने लग गई लोगों की नजरों में, कंपनी ने अपोलोजाइज किया राजे को, and then he took those cars back to the palace. So this all depends on the goodwill and reputation. कैसे ये छोटी छोटी कंपनीज, कहाँ टाटा, आयरन एंड स्टील, कहाँ, now you see where is Tata and the amount they are spending on CSR. कहाँ से इतने 1200 करोड़, 3000 करोड़ कहाँ से निकाल रही हैं कंपनीज? Because they are making huge profits. और ये इंडियन मार्केट से नहीं इतना प्रॉफिट आ रहा, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इतना प्रॉफिट. They have improved, they have expanded their horizons. अपना सोचने का, अपने विचारों का, अपने विजन को
और बड़ा कर दिया। उनको अपने सामने एक छोटा सा कंट्री इंडिया नहीं दिख रहा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, इट कैन बी एनी कंट्री जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है। वो छोटे से कंट्री अपने विजन नहीं रखे उन्होंने वर्ल्ड अपनी विजन रखी। उन्होंने 195 कंट्रीज को विजन रखा है, हमने हर कंट्री तक पहुंचना है, हर लोग तक पहुंचना है। और ये तो इंडियंस के एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज द थिंग विच मल्टीनेशनल कंपनीज आर डूइंग। इंडिया में एक स्टेट गुजरात में एक छोटा सा टाउन गांधीधाम, वी हैव ऑल दीज स्टोर्स लाइक एडिडास एंड प्यूमा। Now these companies are growing, expanding their, जब वो अपनी कंपनीज अपने विजन लिखती हैं, मिशंस लिखती हैं, हमें क्या अचीव करना है, दिस गोज एज देयर विजन। तो फर्म्स को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इंटरनेशनल फंड, और उसके साथ साथ वी विल सी कि नेशन को कैसे फायदा हो रहा है। नेशन इज अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज। हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं कंट्री की, जैसे गरीबी, जैसे एम्प्लॉयमेंट, दे आर बीइंग सॉर्टेड आउट बाय दीज इंटरनेशनल बिजनेस। मल्टीनेशनल कंपनीज आई, प्लांट सेटअप कर दिया, इंडस्ट्री सेटअप कर दी, वहां एम्प्लॉयमेंट दे दी। KFC आया, मैकडोनल्ड्स आया, टेक इट एनीथिंग, इट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और जब वो सेटअप कर रहे हैं कहीं पे भी, दे आर इवन कल्चरल डिफरेंसेस को लोगों के बीच में से निकाल रहे हैं, लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, कि एक साथ लेकर आ रहे हैं। एंड बिकॉज एक प्रोडक्ट वो जो बना रही हैं कंपनीज, दे आर नॉट फॉर द हाई और द इन्फ्लुएंशियल क्लास, वो सबके लिए बना रहे हैं। Somewhere the cost is low, somewhere the cost is high, they are trying to bring a balance. एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ गया, और लोगों को जितनी फॉरेन कंपनीज आएंगी या इंटरनेशनल बिजनेस में है, आप जितना डील करते हो, जितना ट्रांजैक्शंस करते हो, जितना कम्युनिकेट करते हो, लोगों का कल्चर सीख के यू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ योर ओन कंट्री। यू आर अवेयर ऑफ योर ओन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कंट्री में जो अब देखने को आई, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी द कंपनीज आर ब्रिंगिंग अलोंग। एप्पल और ये कंपनीज अगर आज तक टच स्क्रीन न लेकर आती तो शायद हम अभी तक वैसे ही बैठे होते 1947 वाले ट्रेंड में। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस दैट वी आर ग्रोइंग। You have points in your book 284. If you see benefits to the nations, they're earning in foreign exchange. We are making efficient use of resources. अब हर कंट्री हर चीज में अच्छी नहीं हो सकती। जापान जैसी कंपनीज जो कि, चाइना जैसी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी हैं, वो उस पर फोकस कर रही हैं। जो इंडिया जिस पे अच्छा है वो उस पे फोकस कर रहा है। जो US, UK, जर्मनी जिस चीजों में अच्छा है, दे आर, रशिया जहां जहां जो अच्छा है वो उसमें अपनी मास्टरी कर रहा है। एंड देन दे आर एक्सचेंजिंग गुड्स। सो दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंट, प्रॉपर। एफिशिएंट मीन्स द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ग्रोथ आ रही कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। हमें फैशन ट्रेंड्स आ गए, पहले भी इतना नहीं था जितना अब इतना कॉन्शियस है। वेयर हैव दो साड़ीज एंड वो विद इन फ्यू इयर्स वो तो बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे। इट हैज बिकम सो इंडो वेस्टर्न दीज डेज। क्यों? इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स, intermingling of cultures because of international business. And if you see the benefits to the firms, higher profit, capacity utilization, I think I have covered more points than this. Now, is it clear with everyone? Everyone? Bhavya? मैम आफ्ताब? लिटिल किसने किसने बोला लिटिल लिटिल? मैंने।
मनन, सिंपल सी बात है। मैम वो मैं चैप्टर पढ़ूंगा ना, एक बार क्लियर हो जाएगा। हाँ, नहीं, आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे, आप आर्टिकल्स पढ़ोगे। इसका चैप्टर को कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। सी, ओके मैम। स्मार्ट बनते हैं, और ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कोई जरूरत नहीं है। Byju's, I don't want to see. Now see these. Global sourcing will be good. See, तुम्हारे एक चैप्टर के बाहर निकलो, सी देयर आर मोर प्रॉब्लम्स। और 11th के बच्चों से ज्यादा डिफरेंट ट्रेड पैटर्न्स हैं, रेगुलेटरी मेजर्स अलग हैं, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बेनिफिट हो रहा है इंटरनेशनल बिजनेस से, और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज। अब अगर हम इंडिया जैसे कंट्रीज लें जो कि डेवलपिंग है, या अफ्रीका जैसे कंट्रीज हैं, उनके लिए तो इट इज गोइंग टू बी इज ऑफ अ ग्रेट एडवांटेज। फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, कुछ अपने साथ साथ टेक्नोलॉजी ला रही हैं, कल्चर लेकर आ रही हैं, वहाँ का फैशन लेकर आ रही हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम लेकर आ रही हैं। वी गेट मोटिवेटेड, हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे भी ऐसा पढ़ें। वी सेंड देम टू द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इतने प्रोफेशनल्स क्रिएट हो रहे हैं। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सुंदर पिचाई, एंड वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ द सीईओज वर्किंग इन फॉरेन कंपनीज। रीड दीज आर्टिकल्स एंड मैम अभी देन। भेज दो ना ग्रुप में। क्यों? मैंने क्या लिखा है मनन? प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आपके प्लान ऑफ एक्शन में सब कुछ दिया हुआ है। ये आपके प्लान ऑफ एक्शन में ये दिया हुआ है मनन, ऑलरेडी आर्टिकल्स उसमें डाले हुए हैं। व्हेन आई सेंड ना, तो फिर सुबोध सर कहते हैं कि व्हाई डू यू नीड टू सेंड इट अगेन, जब आपने प्लान ऑफ एक्शन में डाला। सी, डिस्टेंस इज अ प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल बिजनेस। डॉक्यूमेंटेशन, स्टडी ऑफ फॉरेन मार्केट। अब हमने इंटरनेशनल बिजनेस अफ्रीका में करना है, ऐसे थोड़ी आज कुछ भी एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। हमें वो मार्केट पूरा स्टडी करके आना पड़ेगा। Either we get it done from the outside agencies, or we'll have to go there and study the market ourselves. आपके फादर या रिलेटिव्स फ्रेंड्स में से कोई इंटरनेशनल बिजनेस में, आई थिंक बहुत सारे हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। हाउ डिड दिस स्टार्टेड? यू शुड आस्क देम, कैसे शुरू किया और व्हाट अट्रैक्टेड देम? स्टडी किया या लोगों की बातों पे डिपेंडेंट होके देन दे स्टार्टेड, एंड व्हाट मेड देम चूज दोस कंट्रीज? कोई टिम्बर में कर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में अलग अलग स्टेट्स को फोकस किया है। क्यों अलग अलग? कोई किसी तरह के टिम्बर में स्पेशलाइज कर रहा है, कोई कहीं पे। बट व्हेन यू सेंड योर गुड्स, आपको कौन से कंट्री में, अब अफ्रीका में आप बिल्कुल रिब्ड जीन्स नहीं भेजोगे हर स्टेट में। आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि आपको जो प्रोडक्ट भेज रहे हो वो कैसा चलेगा। लॉसेस में नहीं हमें जाना है, हमें प्रॉफिट्स में ही जाना है। Import and export restrictions, lack of information about foreign businesses, risk in transit, difficulty in transportation and communication. So much material we have. नोट्स बनाने हैं, एक अच्छा आंसर लिखना है, बुक के 4 पॉइंट्स नहीं, 2 आर्टिकल्स पढ़ो, अपने उससे लिख सकते हो तुम लोग इन योर ओन वर्ड्स। So just write 2 articles. They're simple also, and economic discussion or global sourcing blog. They're always good. Economic discussion. I hope everyone is writing. Global sourcing. This finance management is also good. See the challenges in international. See, so many points we have.
टैक्सेस कैसे देंगे यहाँ की कंट्री में. प्लीज रीड ऑल दीज आर्टिकल्स, देन बिकम क्लियर. देन राइट योर नोट्स. डोंट राइट 4 पॉइंट्स. बुक वाले 4 पॉइंट्स लिख दोगे. ओके, so can I move ahead now? Yes, ma'am. Okay, I just wanted to show you something. Today's Tuesday, na? I'll show you tomorrow. Okay. Now one more topic is there. जिसके points आप लोग मुझे बताओगे, and then we are done. Then we can just wind up with the topics. Now, what is the difference between international business and domestic business? डिफरेंस तो वही है जो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में है, मगर इसके अलावा डोंट गिव मी दोस पॉइंट्स. इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंस? नाउ इन डोमेस्टिक बिजनेस इफ यू सी, जो खरीद रहा है या बेच रहा है, दे आर बोथ. इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो वो उसी होम कंट्री को दोनों बिलोंग कर रहे हैं. बट हियर द बायर एंड सेलर, दे आर ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज. हियर वन कंट्री इज इन्वॉल्व्ड, हियर टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड. यहाँ जितने इन्वॉल्व लोगों के साथ, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके साथ इंटरेस्टेड हैं आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस में, जैसे एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, या कोई भी जनरल पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है, दे आर ऑल लोकल. योर एम्प्लॉयज, एवरीवन. बट यहाँ आपके स्टेक होल्डर्स जो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हैं या इंटरेस्टेड हैं आपके बिजनेस के प्रॉफिट में, दे आर ऑल ऑफ टू कंट्रीज. और मैम करेंसी. करेंसी, यस. मैम डोमेस्टिक का एक ही करेंसी होगा और इंटरनेशनल का डिफरेंट करेंसी होगा. यस, वन करेंसी डील्स इन वन करेंसी. यहाँ दो फॉरेन करेंसी आ गया जिस भी कंट्री के साथ आप डील कर रहे हो. यहाँ जो आप कस्टमर्स को डील करते हो, ये मैम लीगल फॉर्मेलिटीज. यस, लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है. यहाँ मैम जितना इन्वेस्टमेंट. कस्टमर को, somebody was saying something, बोलो. मैम इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट मैम कम है, ड्यूटी. कम है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. यस भव्या. मैम लैंग्वेज बैरियर. हाँ, मैं अब यहाँ पे हम सिर्फ कस्टमर जो है नेशनल अपने ही कंट्री के कस्टमर्स को डील कर रहे हैं. यहाँ हम अलग अलग कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, सो द कस्टमर्स आर आल्सो डिफरेंट. मैम कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी, ओके, यस. मैम यहाँ रिस्ट्रिक्शन. जीएसटी, यहाँ अलग अलग ड्यूटीज हैं तुम्हारी. अभी लेट मी फिनिश दिस पॉइंट, मनन. अब देखो, जहां हम कंट्रीज के साथ डील करते हैं, जैसे मैंने अफ्रीका की एग्जांपल आपको दी, सब लोगों के टेस्ट, फैशन, ये सब कुछ अलग है. लैंग्वेज अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है. कई कंट्रीज में शॉर्ट कपड़े पहन सकते हैं, कई में नहीं पहन सकते. किसी में अलग तरीके के लुंगीज एंड वो चलते हैं, किसी में कुछ और चलता है, किसी में द ट्रेंड इज ऑफ वेयरिंग अ सूट एंड ऑल. In respect of girls also, in respect of men also, the fashion are different. अब जो तो लोग टिम्बर टुम्बर में डील कर रहे हैं, ओके. द वंस हु आर डीलिंग इन क्लोथिंग, शूज, फैशन इंडस्ट्री में हैं, उनको तो ये सारे फैक्टर्स रीड करने पड़ते हैं, स्टडी करने पड़ते हैं, एंड they have to bear the consequences also when the fashion changes immediately. And COVID also, you know that COVID had a deep impact on this international business. Any type of international business. Then if we take up more points, we will follow that the business structures are different, the business patterns are different. हर कंट्री अपने तरीके से चलती है. यूएस बहुत स्ट्रिक्ट है, कितने इंडिया में भी ऐसे हैं. Now see this list, everyone.
Now, if you see this, these are list of items जो हम import नहीं कर सकते इंडिया में. Prohibited, बिल्कुल banned है. फिर ऐसे ही we have a list of restricted goods. Restricted जिसके लिए हमें restrictions हैं, मगर कर सकते हैं, मगर लाइसेंस लेना पड़ता है. ऐसे नहीं कोई भी गुड्स होगी तो हम कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं. देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू फॉलो. जब अभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर करेंगे तो यू विल सी कि कितना लेंथी प्रोसीजर है, कितना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना. देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आएगी, वो सर्टिफिकेट देगी, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल से लेंगे, कितने सारे हमें डीजीएफटी से वो लेने हैं सर्टिफिकेट्स. एंड उसके अलोंग ये सारे रिस्ट्रिक्टेड एंड जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट्स, दे आर प्रोहिबिटेड. ये चीजें नहीं कर सकते. अमर्त्य डिड इट एज एन एक्टिविटी. 10 आइटम्स अपने लिस्ट में लिखी हैं उन्होंने रजिस्टर में. यू कैन ऑल्सो राइट दिस लिस्ट ऑफ 10 प्रोहिबिटेड आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट. दोनों चीजें आपको मिलेंगी. यू कैन चेक इट ऑनलाइन. So many things are there which we have not even heard. Now, these are the various differentiations between international business and domestic business. बहुत मार्केट स्टडी करना पड़ता है टू गेट इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. और ये जो छोटे रिटेलर्स हैं, आइटनर एंड आई डोंट टॉक स्मॉल स्केल रिटेलर्स है, फंड्स की कमी है, कैपिटल इतना नहीं. इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए दे हैव टू स्पेंड fill the amount to get the entire information. So it's a tedious job also, but once you start doing it, we have got a lot of technologies. आजकल translators आ गए हैं, interpreters आ गए हैं, तो middlemen आ गए हैं बहुत सारे. So this has become very easy now in spite of all these problems. जो हम problems discuss भी करते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें which is better, yes, international business is always better and good to do to grow for the economic growth of the country and for your self growth. I hope I was clear. Yes, ma'am. Okay, so let's do it January. Aftab Bara, I'm taking attendance. Bhavya Patel. Yes, ma'am. Devansh Yes, Garg. ma'am. प्रेजेंट हूँ मैं. अभी फटाफट बताओ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है आफ्ताब. इंटरनेशनल बिजनेस रुको दे सोचना पड़ेगा थोड़ा. देखना क्या है, सोचो बस सिर्फ. इंटरनेशनल, नेशनल नहीं बोला. वर्ड को समझो पहले. मैम आई डोंट नो. आफ्ताब कहाँ रहते हो आप? मैम मैं क्लास में ही था पर मैं थोड़ा ध्यान नहीं था. नहीं नहीं, आप रहते कहाँ हो? घर पे. नहीं, घर कहाँ है वो तो मुझे भी पता है, घर ही रहते हैं सब लोग. हाँ जी मानन बोलिए. मैम Yes, ma'am. इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है मींस इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं आफ्ताब. इंडिया के अंदर अंदर करोगे तो इंटरनल ट्रेड है, बाहर करोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस. अच्छा ये पूछ रहे थे क्या मैम? सॉरी. इंटरनल ट्रेड इज डन इन इंडिया एंड एक्सटर्नल ट्रेड आर डन आउट ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन का वहां नहीं हो रहा, हम डील कर रहे हैं उनके साथ. दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं.
हाँ तो दूसरा मैम एक वही कंट्री यानी हम है तो दूसरा वो है। जैसे एक्सटर्नल ट्रेड हो होता है जो इंडिया के बाहर हो। अच्छा ठीक है, एग्जांपल दो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? मैम कुछ कुछ भी ले लो, जैसे पेट्रोलियम ले लो, हाँ ले लो, कोई बात नहीं, इसकी एग्जांपल दो। रॉ मटेरियल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम बोला। वेरी गुड आफ्ताब, इसको पढ़ लेना आप। अभी tomorrow we are going to, let's have a debate online students। या तो इस पे कर लो, विच इज बेटर, इंटरनल इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनल बिजनेस, या इस पे कर लो इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। नहीं मैम, पहला वाला सही है। तो दो टीम्स होंगी, एक टीम में ये बोलेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस शैल नॉट बी देयर क्योंकि लोकल रिटेलर को प्रॉब्लम होती है उससे, लोकल मार्केट को प्रॉब्लम हो रही है, लोग बाहर पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, इंडिया पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। सो रेज योर हैंड्स, 2 स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, बी क्विक। Ma'am, can you repeat? मनन ओके, एक स्टूडेंट और रेज योर हैंड, पवन ओके, आफ्ताब आप अपन नीचे कर लो। सो ओके, 2 टीम्स आर देयर, मनन एंड आफ्ताब, just type quickly which team you want, in favor of international business or यस मैम, इन against? फेवर। चलो पवन, you are against international business now, Yes, although ma'am. I know, ठीक है? And now your team shall have 5-6 students and Manan's team shall have 5-6 students with Manan। मैम आप पार्थ बना के दो नाम, ना अभी। मनन नाम लिख लो। हाँ पार्थ इज हाँ इन, मैम। पार्थ एंड नैतिक इन योर टीम। बस अभी पवन की me साइड too. पे बोलो, नमन एंड नैतिक इन पवन टीम। पवन राइट, और इन स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो जितने आज क्लास में हैं। and then post this in the group। आफ्ताब को ले लेना किसी टीम में। ओके मैम। we do this on मैम Thursday। आपको मैंने ले लिया है। ओके, इनको हाँ मनन। मनन और पवन, इनको प्रिपेयर करना, कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं ये आपको बताना है इनको। आर्टिकल्स पढ़ो, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ोगे सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, बहुत मटेरियल है Okay, ma'am. इसमें, ठीक है? और वी डू दिस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज उत्तरायण की हॉलीडे एंड टुमारो। ओके, एक गुड न्यूज दूं, यस मैम। Yes, ma'am. जितना हमने अभी इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फर्म्स को बेनिफिट क्या है, नेशन को बेनिफिट क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में फर्क क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। We have only this much to study. Rest has been omitted by CBSE. मगर we will give 2 more days for international business, just in order to tell you कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है एक्सपोर्ट करने का, और ये जो हमने अभी तरीके किए हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, राइट? Okay, ma'am. मगर वो हमारे एग्जाम्स के लिए नहीं है, सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए है, ठीक है? गुड न्यूज हो गई ना? सो दिस Yes, बिकम्स ma'am. अ शॉर्टर चैप्टर, ठीक है? एनीथिंग एल्स? नो मैम। Anyone? Any doubt? You can read this chapter. Bring your doubts. मैम अब जाने दो, भूख लग रही है। No, ma'am. Yes, ma'am. We have to sit 1 hour more here. We will be allowed to go at 2 o'clock. Okay. Enjoy your lunch then. Take Thank care, you, ma'am. everyone. बाय मैम। Bye-bye.